Good morning, dear parents and dear students. I am here again, your English teacher Ashima, with a new Monday, with a new session and new energy. I hope you all are there with me. Yes, class 3 students, I hope you all are there and let us start with this session. Before doing that, जैसे कि हम हमेशा हर सेशन में करते हैं, let us recap what we have done in the last week. So in the last week and the last few sessions, we were doing lesson number 2, and that was about the little red kite. We have done the exercises that chapter taught us about keep trying until we succeed. जब तक हम वो चीज़ सीख ना जाएं, जब तक हम वो चीज़ कर ना लें, हमें कोशिश करते रहना चाहिए. And the feeling of the afraid feeling, डरना, there is nothing wrong about it. डरना कोई गलत बात नहीं है, because it's human reactions to new things. जब भी कोई नई चीज़ होती है ना, we feel scared, whether it is good for us or not, but हमें डर लगता ही है, चाहे वो अच्छे के लिए या नहीं, या कुछ बुरा भी है तो भी हर सिचुएशन में this is what humans are, वो डर जाते हैं. So this is okay. अगर आप डर भी रहे हो, that doesn't mean you are a coward. आप डरपोक हो. It is human nature. Just say it like this. Yes, I'll do it. How does it matter if I'm scared? I'll not do it. If I'm scared, then also I'm able to do it. That is what we call a victory. डरने के बाद भी उस काम को करना, उस काम को करने की कोशिश करना ही जीत होती है ना? So enough about like motivational speech, and now let us come back to the session. As you can see on the screen, nouns common and proper. So we have done this initially. जब हमने start किया था with the initial sessions, जब मैं आपको मिलने आई थी शुरू में, शुरुआत में, तो हमने noun से start किया था, है ना? So come back to the topic, and I am doing it again because उस टाइम हमारे पास books नहीं थी, है ना? We have done it randomly. मैंने आपको बताया, सिखाया, तो that thing you have to reconnect. वो चीज़ें आपको फिर से reconnect करनी पड़ेंगी. वो मैंने इतने डिटेल में पढ़ाया था ताकि आप लोगों को याद रहे, है ना? So common and proper again we are doing this, and now we will be focusing more on the book exercises. अब हम book में भी करेंगे साथ साथ. So I am introducing it again. आज एक छोटा सा introduction है. I will be giving you a supporting video also. एक छोटी सी supporting video भी मिलेगी आपको animated, जो देखकर आपको शायद अच्छा लगेगा. मेरे अलावा कुछ और देखने को. I hope कि we get bored with things, but you don't have to get bored. You have to stay in touch and you have to study well. So nouns common and proper. सबसे पहले let me be very clear. अगर आप लोगों ने definitions already लिख ली थी तब common noun, proper noun, what is noun, ये सब चीज़ें अगर आप लिख चुके हैं, no need to write it again. अगर आपने नहीं लिखा है तो आप ये definitions लिखेंगे. I am not writing definitions properly here. वो आपको book में मिल जाएंगी. Okay, so you can write the definitions. So first of all, we'll start with what is noun. Okay, noun. सबसे पहले तो हम common और proper में जाने से पहले ये सीख लें कि noun क्या है. Noun, everything around. I'll come back to that topic. Everything around ourselves. हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं, क्या हम उन सब चीजों को किसी एक वर्ड से मतलब रिकॉग्नाइज करते हैं? Yes or no? Yes. So if you are seeing this thing, आपको ये white सी चीज कुछ दिख रही है स्क्रीन पे, और let it be white screen, जो चीज आपको स्क्रीन पे दिख रही है, वो जो स्क्रीन है, I just spoke that word, स्क्रीन है, मैंने उस चीज के लिए भी जो एक रेक्टेंगुलर सा आपको दिख रहा होगा जिसमें आप मेरी वीडियोस देखते हो, तो वो क्या है? That is a mobile phone, or it is a laptop, or a PC, computer, or a tablet. So whatever you are using, जो भी आपके हाथ में अभी है, वो भी एक चीज़ है ना. उसको हमने एक नाम दे रखा है, फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, whatever. Okay, so वो नाम, उसका नाम है. उसके बाद उस वीडियो में जो आपको ये दिख रहा है, वाइट सी चीज़ जो आपको दिख रही है, चीज़ रेक्टेंगुलर शेप है और उस पर मैम कुछ लिख रहे हैं. सो ये चीज़, इसको मैं क्या बोलती? बोर्ड. So it also has a name. मैं उससे किससे लिख रही हूँ? I am writing with a marker. इस चीज़ का भी नाम है. और जो सबसे बड़ी चीज़ आपको दिख रही है, a person standing here in front of you, उसका भी एक नाम है. So everything around, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है, कोई इंसान नहीं है, कोई ऐसी चीज़ अभी तक हम we don't do जिसका कुछ वर्ड ना वर्ड वो जो रखा गया है वो नाम कहा जाता है. And that naming word is called noun. Okay. I hope this elaboration, this much, giving you ideas like वो चीज़ क्या है, कुछ क्लियर हो गया होगा.
So let's come to what is noun. It is the name of a person, place or thing. It is the name of a person, place or thing. मतलब किसी भी इंसान का नाम, पर्सन, ह्यूमन बीइंग वी हैव टॉक्ड अबाउट, किसी जगह का नाम, किसी चीज का नाम, इंक्लूड एनिमल्स आल्सो इन दिस. सो एवरीथिंग अराउंड, वो इन्हीं चार कैटेगरी, तीन कैटेगरीज में से ही आएगा. या तो वो कोई चीज होगी नॉन लिविंग, या लिविंग ह्यूमंस होंगे, या फिर इट मे बी लाइक एनिमल्स. सो एवरीथिंग अराउंड हैज अ नेम एंड दैट नेम इज कॉल्ड नाउन. नाउ टॉकिंग अबाउट कॉमन नाउन. So common noun and proper noun, I am writing here proper noun also. इसका डिफरेंशिएट आप कैसे करेंगे? What is a common noun and what is a proper? Let us come back to me, आपकी टीचर. I again told you another common noun. So I am a girl here, standing in front of you on your screen. I am a girl, लड़की. So girl is a type of a person. एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ अ पर्सन, ह्यूमन बीइंग को हम गर्ल कहते हैं. लेकिन हर लड़की को आप हमेशा कोई अगर मुझे बुलाएगा तो वो ऐसे नहीं बुलाएगा, ओ गर्ल. हाँ, आई कैन हियर इट, ओ गर्ल. सो मे बी और मे नॉट बी आई टर्न अराउंड एंड आस्क व्हाट हैपेंड. जरूरी नहीं मैं उस गर्ल वर्ड को सुन के मुड़ूँ और उनको जवाब दूँ, बिकॉज दे आर नॉट टॉकिंग टू मी. आई एम नॉट श्योर, बिकॉज मेरे लिए तो एक पर्टिकुलर नाम है. माई नेम इज आशिमा. सो इफ दैट पर्सन कॉल्स मी हे आशिमा, so then I will respond. So basically I'll give you an idea what happens to this. Okay, if something around, okay, let us talk about your screens only. I am having a phone, so if I am you and I am watching something, my Ashima ma'am's video I am watching here in front of me, तो वो जो चीज़ है आपके हाथ में, let it be मोबाइल फोन. तो मोबाइल फोन बहुत सारे, मोबाइल फोन इज अ कॉमन नाउन जो हम उस टाइप की चीज़ों के लिए यूज करते हैं. लेकिन अगर स्पेसिफिक हो जाए आपका फोन कौन सा, लेट मी टॉक अबाउट माई. सो आई हैव अ सैमसंग A6 फोन, सो दैट इज अ स्पेसिफिक थिंग. अब ये नहीं कि सैमसंग A6 बहुत सारे होंगे, वो भी होंगे, बट चीज़ों में हम ऐसे ब्रांड वाइज डिफरेंशिएट कर सकते हैं. व्हेन इट कम्स टू ह्यूमन बीइंग्स लाइक मी, आई एम अ गर्ल. गर्ल तो बहुत सारी है, इट इज अ टाइप ऑफ अ पर्सन. गर्ल इज अ टाइप ऑफ अ पर्सन, ठीक है, वो कॉमन हो जाएगा गर्ल. आई राइट एग्जाम्पल्स है. सो गर्ल इज अ कॉमन नाउन. लेकिन अगर वो बोले आशिमा, so that is a particular specific name for me. अब ये भी नहीं है कि आशिमा किसी और का नाम नहीं है, लेकिन वो भी स्पेसिफिक. दैट रेपुटेशन कैन बी अलाउड, बट ऐसे में सबका नाम आशिमा तो नहीं हो सकता ना. सो आई होप दिस इज क्लियर कि कॉमन और प्रॉपर में क्या डिफरेंस है. कॉमन नाउन इज, आई राइट इट एंड यू कैन ऑल्सो राइट इट इन द नोटबुक्स. अगर आप पहले लिख चुके हैं नाउन, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, ये 3 डेफिनेशंस आपकी नोटबुक में होनी चाहिए इन ग्रामर नोटबुक. Common noun, it is the name of type of, it is the name of a type of person, place or thing. वही चीजें बार बार रिपीट होंगी, और थिंग. जैसे हमने अभी बात की, फॉर एग्जाम्पल आई एम राइटिंग एग्जाम्पल्स हियर, गर्ल, फोन, और लेट मी टॉक अबाउट अ सिटी. City and so many more. City, I'm talking about, this city is so beautiful, this city is so big, this city is so polluted, this city is so noisy. So उस city जो cities are so many. City word एक जगह के लिए यूज होता है, an area which have population inside it, or which is a quite developed one. ठीक है, सिटी उस जगह के लिए यूज हो गया. लेकिन अगर हम पर्टिकुलर सिटी के बारे में जो बहुत पोल्यूटेड है, लेट इट बी लाइक दिल्ली. सो दिल्ली इज अ वेरी पोल्यूटेड सिटी. सो दैट स्पेसिफिक थिंग, न्यू दिल्ली जो मैंने बोला, वो प्रॉपर में आएगा. लेकिन व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट सिटी, सो यू विल नॉट गेट एनी आइडिया कि मैं कौन सी सिटी की बात, मैं जगह के बारे में बात कर रही हूँ. आपको इतना आइडिया समझ में आ जाएगा. टाइप ऑफ अ प्लेस, आई एम टॉकिंग अबाउट अ प्लेस, टाइप ऑफ अ प्लेस, वो आपको इतना ही समझ में आएगा कॉमन नाउन से. बट मैं किस सिटी की बात कर रही हूँ वो आपको प्रॉपर नाम से समझ में आएगा. एंड इट इज द नेम ऑफ अ स्पेसिफिक. अब मैं वर्ड यूज कर रही हूँ स्पेसिफिक, मतलब एक पर्टिकुलर पर्सन,
place or thing. Example, girl, let it be रीमा. उसी के लिए मैं आपको आई एम टेकिंग रेफरेंस बिकॉज आपको क्लियर हो जाएगा. लेट इट बी iPhone X or XS or whatever brand you want to use. And then city, let it be Sirsa, and so many more. So these are basic differences between common and proper noun. Now moving ahead, I hope you are clear with this. ये definitions आपको book में भी मिल जाएंगी. You have to write these definitions in your notebook. Okay. So let me clear this, and we will be focusing more about how to write common and proper nouns, or how to differentiate, or how to classify between them basically. So let us talk about common and proper. I'll give just basic differences here. So common nouns are basically whenever we write common nouns, they are not written with initial letter capital. Initial letter is not capitalized means हम capital letter से शुरू नहीं करते हैं. Conditions apply if it begins a sentence or is a part of some title. Okay, I'll explain this. Common nouns को हम capital letters से नहीं लिखते हैं. They are like girl, book, city, park, marker, dress, स्टूल, चेयर, टेबल, ये सब बहुत ही कॉमन नाउन्स हैं. एक टाइप ऑफ चीज, थिंग, और टाइप ऑफ अ प्लेस, और टाइप ऑफ अ पर्सन के बारे में बता रहे हैं. तो स्पेसिफिक नहीं है तो उसको हम स्मॉल लेटर्स में ही लिखेंगे. लेकिन कंडीशंस क्या है? अगर वो कॉमन नाउन किसी सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड है या किसी टाइटल का पार्ट है तो वो कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, if my sentence is beginning with, we have done alphabetical order and we are writing sentences. So many times I have told you, जब भी कोई sentence लिखते हैं उसका first letter capital होता है. So if my sentence is beginning with a word like book or chair or something like that, so उसका आप first letter capital रखेंगे. उसमें आप ये नहीं देखेंगे common है या proper है. Second thing, if it is a title of some story or some book, तो उसके हर word का first letter capital रहता है. You can see your books, स्टोरी बुक्स जो आप पढ़ते हो वो भी देख सकते हो. उसमें आपका जो टाइटल होगा, लेट इट बी द tortoise and the hare. So the tortoise and the hare. So each letter, first letter of the word is capital. ठीक है, तब हम कैपिटल रखते हैं. उसके अलावा कॉमन नाउन्स कभी भी कैपिटल लेटर से नहीं होते. वाइस वर्सा, begins with a capital letter. प्रॉपर नाउन्स हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं. ओके, and every word I am telling, example is if I am writing New Delhi, so ऐसा नहीं है कि मैं न्यू का N कैपिटल रखूँ और दिल्ली का स्मॉल. नो, प्रॉपर नाउन में जितने भी वर्ड्स हो जाए उनका हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल रहेगा. न्यू दिल्ली, लेट इट बी रेड फोर्ट, तो R और F दोनों कैपिटल रहेंगे. ठीक है, दैट इज हाउ इट वर्क्स. एंड दिस इज हाउ, लाइक कैपिटल लेटर से शुरू होता है और जितने भी वर्ड्स उसमें इंक्लूड किए जाएंगे, द ताजमहल, सो द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड विल बी कैपिटल. ये आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं. Now you have Monday, like today is Monday, so I'll be giving you a homework and that is from your book. I'll be giving a scanned copy also. There are 2 exercises on page number 22. Page number 22, उसमें common और proper nouns के बारे में है. If I say I am writing something like, let's take same example, city. City is a common noun. तो आपकी एक्सरसाइज में क्या है, आपको city के साथ 2 proper nouns देने हैं. So let it be सिरसा, वो प्रॉपर हो जाएगा, है ना. एंड let it be what else, और कौन सी सिटी लिखोगे, हम अपने आसपास की लिख देते हैं, हिसार. सो आई एम जस्ट कीपिंग इट सिंपल, आप कुछ भी लिख सकते हैं. देन इफ आई से फ्रेंड,
फ्रेंड इज अ कॉमन नाउन, आपको उसके लिए 2 प्रॉपर लिखने हैं, मतलब आपको स्पेसिफिक फ्रेंड पे जाना है. सो आई राइट रिया एंड प्रिया. दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल. आपको ये एक्सरसाइज करनी है. सेकेंड थिंग इज यू हैव टू क्लासीफाई. कुछ वर्ड्स दिए हैं आपको सी और पी, यानी कि कॉमन और प्रॉपर में क्लासीफाई करना है. फॉर एग्जाम्पल इफ इट इज रिटन बाइक, बाइक लिखा है तो बाइक कैन बी एनी मोटरसाइकिल और बाइक, सो इट इज कॉमन. इफ इट इज रिटन देयर राहुल, सो राहुल विल बी कॉमन और प्रॉपर. प्रॉपर. राहुल एक स्पेसिफिक लड़के का नाम है. इफ इट इज रिटन बॉय देयर तो वो कॉमन रहेगा. सो आई विल बी गिविंग यू एक्सरसाइज टू डू. सो योर होमवर्क इज टू डू द एक्सरसाइजेस ऑन पेज नंबर 22 of your grammar book. This is the end of the session from my side and I am giving you a supporting video also. वो भी ध्यान से देखना है. वो छोटा सा स्क्वेरल आपको बहुत अच्छे से पढ़ाएगा. आई थिंक आप बोर हो जाएंगे ना मुझसे, तो आई शुड बी गिविंग सपोर्टिंग वीडियोज, एनिमेटेड वन. सो उससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. सो दिस इज द इंट्रोडक्शन. बाय बाय.